In our previous two classes, we had started off with the history chapter, Nationalism in India. And we have studied how did Satyagraha, started by Mahatma Gandhi, react on British. The first is return of Mahatma Gandhi, then the three Satyagraha, Rowlatt Act Satyagraha, Jallianwala Bagh, withdrawal of Satyagraha, formation of Muslim League, non-cooperation Khilafat movement, the movement in different steps, its outcome in different areas like cities, rural area, tribals and plantation, then the split in Congress, Swaraj Party by Motilal Nehru, promise by the British to give a dominion status, formation of the Simon Commission, greeting of Simon Commission with Go Back Simon, Gandhiji's second round table conference resulting in a failure, and then starting of civil disobedience, that is the iconic Dandi March or Salt March from Sabarmati to Dandi, breaking up the laws, resulting in one more movement, but it was not that much successful. Now the next or the last phase is two है, आपकी दो है, and इस ये वाले जो दोनों में से एक क्वेश्चन आता है. The first is, what did the movement, that is civil disobedience movement, offer different things to different people? And the second is, what were the limitations of civil disobedience? यानी कि किस उसमें ऐसी क्या चीज थी जो बहुत ज्यादा नहीं पार्टिसिपेशन था. And last but not the least, which is one of the most important questions, that is sense of collective belonging. So these are the one which are left. How participants saw the movement means, अब अलग अलग जो है participants जो है, they had participated in this movement. Some of them were the rich, some of them were the poor, there were women, there were different people. But सबका जैसे कि आपके NCM में what happened, for the city people it was a participation, for the village people it was getting rid of the revenue tax, begari and the taluka system. For the plantation worker it was getting out of the Immigration Inland Act. For the tribals it was against the Forest Act. तो how this movement, उन्होंने क्यों join किया था? Why did they join this movement? What were their ideals? In the countryside, that is in the rural areas, the Patidhars of Gujarat and Jat of Uttar Pradesh जो थे, they joined. Why? Because they were the producers of commercial crops. What are commercial crops? Commercial crops होते हैं जिनको हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, यानी कि वो क्रॉप्स जिनको हम अपने लिए नहीं पैदा करते हैं, उसे हम सिर्फ बेचने के लिए पैदा करते हैं, लाइक व्हीट, शुगर, राइस. They were hard hit by the trade depression and falling prices. And when their cash income disappeared, they were not able to pay the revenue demand. And when the government refused to reduce it, they joined this movement. तो उनका जो movement का जो उनका ideal था या उनकी जो main desire था, that was against the revenue that was being increased. So the rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. और उन्होंने अपने कम्युनिटीज को, याद होगा अभी 2 साल पहले इन दिल्ली the Kisan Morcha had started the Kisan rally and then there was a strike. So they have their, उनके जो links होते हैं वो सब जगह होते हैं.
तो all of them जो है they started, sometimes they would force the members to participate in these programs. उनके लिए स्वराज was against high revenue, जैसे आपका NCM में था सेम. But when the movement was called off in 1931, ना तो उनके रिवाइज हुए और ना ही उन लोगों को कुछ पता लगा, so they did not participate. उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. The reason was, first of all, the movement was called off without any negotiations. Secondly, जो वो लोग चाहते थे, क्या चाहते थे? रेवेन्यू को कम करवाना. So that was not there. The poor peasantry were not just interested. ये तो थे rich. अब poor की क्या प्रॉब्लम थी? They were not just interested in the lowering of revenue. Many of them, उनके लिए सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, उनके लिए तो और भी चीजें थी, और भी चीजें मायने रखती थी. और वो क्या था? Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. Depression, as the depression continued and cash incomes dwindled, मतलब कम होते जा रहे थे, तो उनके लिए the small tenants were finding it difficult to pay the rent. तो वो लोग चाहते थे कि वो जो अनपेड रेंट है that should be remitted. Remitted मतलब उसको माफ कर दिया जाए. Remitted का मतलब होता माफ कर दिया जाए. So इसीलिए they joined many radical movements which was started by, मतलब कांग्रेस के अंदर ही आपके स्वराज, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट. बट द कांग्रेस जो मेन आपके लीडर्स थे, वो लोग जो है नो रेंट कैंपेन को हेल्प नहीं करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि वो रिच पीजेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे. दिस वाज द रीजन दैट द कांग्रेस डिड नॉट हेल्प द पुअर पीजेंट्स, जिसकी वजह से दे वर नॉट दैट मच एक्टिव. वो लोग एक्टिव नहीं हो पाए थे. नाउ फॉर द बिजनेस पर्सन, व्हाट वाज देयर आइडिया? उनका आइडिया क्या था? नेचुरल है कि बिजनेस वालों ने जो है दे हैड ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन दी एनसीएम आल्सो. सो उस वक्त में व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज देयर, तो दे हैड लॉस. उनको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है दे हैड गॉट द प्रॉफिट, बिकॉज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी दे वर शट डाउन. जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी वो शट डाउन हो गई थी. तो इंडियंस को फटाफट लाइसेंस दे दिया था ब्रिटिश ने टू एस्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज. हमारे यहाँ बहुत सारे जो आज हम जिनका नाम जानते हैं, जैसे रतन, मतलब टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, ये सब उसी वक्त में एस्टैब्लिश हुए थे बिकॉज दे इजीली गॉट द लाइसेंस. बट उससे पहले ब्रिटिश इंडियंस को लाइसेंस नहीं देते थे. बट दैट वाज द टाइम व्हेन इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो थोड़ा सा बड़ा था. नाउ उनका था, बिजनेसमैन वालों को क्या था? दे वांटेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, यानी कि वहां से सामान लाना एंड यहाँ से सामान दूसरे देशों में जाना, तो उसके जो रेट्स हैं वो फिक्स हो जाए. एंड दे वांटेड जो उनके ऊपर ड्यूटीज होती हैं उसके लिए दे वर फाइटिंग. ऑलवेज रिमेंबर, नोबडी फॉट बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस. उनको लगता था इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो उनको उस चीज से छुटकारा मिलेगा. दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग what was the meaning of freedom in other terms. So during the First World War, Indian merchants and industrialists had made profits and became powerful. As I told you, keen on expanding their business, they now reacted against the colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against imports of foreign goods, क्योंकि imports में पैसा हमें देना पड़ता है, export में पैसा हमारे पास आता है. So that is why they did not want कि foreign के goods हो, Indian manufactured goods पर वो ज़्यादा ध्यान करना चाहते थे. And a rupee sterling, ये मैंने आपको बताया, an equal, यानी कि जो हमारा rate of exchange होता है, that should be there. To organize business interest, they formed the, ये पेपर में आता आपका,
इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, फिक्की, फिक्की आपका अभी भी है, फिक्की आपका अभी भी है। फिक्की इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द बिजनेसमैन। और इसमें क्या होता है, दे आर द वन हु, जो मतलब कोई ना कोई टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई ना कोई टॉप जो मतलब क्या होता है वो इसको हेड करता है उसके अपने, एंड दे आर द वन हु नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट। फिक्की की जो मेन आपका जो ऑफिस है वो आपका यहाँ पर है, इन मंडी हाउस के पास है। सो दे फॉर्म द फिक्की, देन IICI, many, and these were led by पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला, जो मैं भी आपको बता रही हूँ, बिरला, टाटा, ये सब तभी आए थे। The industrialists attacked the colonial control over the Indian economy and they supported the civil disobedience movement. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. यानी कि free economy. फ्री इकोनॉमी तो इंडिया में बेटा आफ्टर 1992 आया है. लेट मी टेल यू, यू विल बी हैविंग दिस इन योर इकोनॉमिक्स इन द लेटर स्टेजेस. दैट्स आपका 1992 के बाद हम लोग जो है अभी हम कह सकते हैं वी आर बिट फ्री. फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रोलिंग द बिजनेस यूजिंग द टैक्सेस, यूजिंग द अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, वो आपका होता है फ्री इकोनॉमी. तो वो लोग चाहते थे फ्री इकोनॉमी, बट द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as growing influence of socialism among young members of Congress. अब वो लोग चाहते तो थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका फेल हो गया. Why it failed? I'll tell after this. Now they did not want. दूसरी बात, उनको डर था कि भाई आपके जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज यानी कि यूजिंग द आर्म्स हो, देन बार बार मूवमेंट में जाने का मतलब है, हड़ताल में लेने का मतलब है बिजनेस का शटडाउन होना. दैट मीन्स लॉस टू द बिजनेस. Secondly, many people were in favor of socialism. Now, what is socialism? Let us now come to this. बहुत अच्छे से समझना. Socialism होता है जहां लोगों का मतलब जो आपके पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनका मानना होता है that all the industries should be controlled by the state, by the government. यानी प्राइवेट इंसान जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता है, अगर वो लगाता भी है तो कंट्रोल गवर्नमेंट रखेगा. दैट इज सोशलिज्म विच वॉज देयर इन रशिया. और इंडिया के अंदर मेनी ऑफ द पीपल वांटेड कैपिटलिज्म. हमारा जो इकोनॉमी है बच्चे, दैट्स कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट्स कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. शायद आज मैं आपको ये बता रही हूँ, एंड those students who will be taking commerce in their 11th standard, they will be hearing this one, that what is the meaning of mixed economy. So they were, हमारे यहाँ पर some of the main industries are with the government, और जो आपकी नॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं उनको कंट्रोल करता है प्राइवेट. जैसे आपको पता है रिलायंस इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे आपके प्राइवेट हैं. और उस वक्त द बिजनेसमैन वांटेड दैट मेनी ऑफ द यंग लीडर्स वांटेड दैट सोशलिज्म शुड बी देयर. हम लोगों ने ना सोशलिज्म को लिया ना कैपिटलिज्म को लिया. कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहां इंडस्ट्रीज की पे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है बाय द गवर्नमेंट, इट इज इन द प्राइवेट हैंड्स, लाइक इट इज इन यूएस. US has a capitalist economy and Russia had a socialist economy. हमारा मिक्स्ड है, हमारा वो भी है ये भी है.
So many people, many businessmen were worried about that. इसीलिए the industrialists did not, मतलब उन्होंने फिर बाद में बहुत ज़्यादा जो है they did not show their enthusiasm. So first हमने पढ़ा rich peasantry, second poor peasantries, third आपके industries यानी कि industrialist. Now this was the first आपका जो था that was for the rich peasants, then for the poor peasants, for the business class. Now, how did the industrial working class, industrialist थे जो कि इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वो है जो लोग काम करते थे, those who were working in the industries. They did not participate except in the Nagpur region. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जहां, ये प्रॉब्लम वहां पर भी थी और यहाँ पर भी थी, जहां जहां रिच लोग जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते थे, द कांग्रेस डिड नॉट वांट, जो कांग्रेस के जो हाई मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे कि गरीब लोग उसमें जुड़े. एंड दैट वाज द रीजन कि जो वर्कर कम्युनिटी थी या फिर जो आपके नॉर्मल लोग थे वो इस मूवमेंट में जुड़ने से दे वर नॉट दैट मच हैप्पी. द वर्कर्स स्टेड aloof. But in spite of that, some workers did participate, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program. सब कुछ तो नहीं किया उन्होंने, like boycott of foreign goods as part of their own movements against low wages, poor working condition. मतलब जो जो उनको मुद्दा लगा उन जगहों पर उन लोगों ने participate किया. There were strikes by the railway workers and dock workers, यानी कि जो shipyard में काम करते हैं. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur, that was the main, हमारा जो पहला इंडस्ट्री जो स्टील का लगा था वो वहीं पे लगा था, जमशेदपुर. वहां they had wore the Gandhian cap, participated in the rallies and boycott campaigns. But the Congress was reluctant to include the workers as a part of the struggle, क्योंकि उनको लगता था कि दिस वुड एलियनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस. बेसिकली वो इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ में रखना चाहते थे, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट वर सपोर्टिंग देम विद द मनी, विच वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. द नेक्स्ट वाज, पहला आपका था द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट, सेकेंड वाज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रुप, थर्ड वाज द विमेन. और ये वाला जो विमेन वाला है ना, ये अलग से पेपर में आता है. दिस स्पेसिफिकली कम्स फॉर अ 3 मार्कर क्वेश्चन. देयर वाज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन इवन ड्यूरिंग द गांधी जी सॉल्ट मार्च. Many women came out of their houses to listen to him. They participated in protest march, manufactured salt, picketed foreign clothes, liquor shop, many even went to job. मतलब इसमें तो बूढ़ी औरतें भी थी. There were many old women, mothers with their children in their arm. हर तरीके की औरत इन्होंने किया था. In urban areas, these women were from high caste families. In rural areas, rich peasants. वही था, जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में दे रहे थे, वहां रिच पीजेंट्स दे रहे थे. विमेन पार्टिसिपेशन में भी दिस वाज देयर. जब गांधी जी कहते थे दैट दिस इज द कॉल फॉर स्वराज, so they began to see service to the nation as a sacred duty of women. But this increased public role did not necessarily mean any radical change. मतलब women को तो लगा था कि वो लोग जो हैं they will also come in the power. Women को तो लगा था they would also come in the main political activities. They will also be given some positions. उनको तो लगा था, उनको, क्योंकि औरतों को हमेशा हम पीछे रखते हैं, तो उनको लगा था they would be given. Gandhi ji was convinced that it was a duty of women to look after home and hearth, be good mothers and good wives. लेकिन गांधी जी का मानना था कि औरत को अच्छी मदर और अच्छी वाइफ बनना चाहिए, घर की देखभाल, और हर्थ मतलब अंगीठी देखनी चाहिए.
After and for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. Symbolic मतलब सिर्फ तुम साथ में आकर खड़े हो. Women as a symbol, not women as a participant, not women as a position holder. कि भाई उनको दे आर गेटिंग सम पोजिशन. दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. सो विमेन पार्टिसिपेशन जो है दैट वाज वेरी वेरी लेस बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. नाउ लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. ये पेपर में आपका 5 मार्कर का क्वेश्चन है. व्हाट वर द लिमिटेशंस. तो जो अगर आपका लिमिट आएगा ना बेटा, तो जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज द सोशल ग्रुप, मुस्लिम ग्रुप, वही आपने लिखना है. फॉर्मेशन ऑफ द हरिजन, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, वही आपको लिखना है. लिमिटेशंस क्या था? नॉट ऑल द सोशल ग्रुप्स वर मूव बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज. एक थे अनटचेबल. आप लोगों को पता है इन इंडिया वी फॉलो अ स्टॉन्च कास्टिज्म. हम लोग जो है कट्टर मतलब मानते हैं, और वो कल की बात नहीं है. आज भी द सेम थिंग इज देयर. आज भी है वो. दिस यू नो. आज भी हम खुद को ब्राह्मण्स, एंड इट्स नॉट लाइक समटाइम्स आई रियली फील वेरी यू नो though I belong to the highest caste of Brahmin, but certain times I feel that at this stage in 2022 we are not supposed to say this word. We never know what is what. हम कहाँ जा रहे हैं, कौन हमें खाना खिला रहा है, किस होटल से हम खाना मंगवाते हैं. We never know. We are in a modern world. But होता वही है, होता वही है. तो उस वक्त में तो it was too much. And there were a group जिनको हम untouchables कहते हैं, which is very prevalent in India. तो जो हायर क्लास के लोग थे वो तो उनको बिल्कुल अपने साथ में रखना नहीं चाहते थे. महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. उन्होंने इस अनटचेबल को एक नया नाम देने की कोशिश की, हरिजन, यानी कि दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. Yet they did not get the equal representation. आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हुआ था. दिस वॉज अ रीजन. अंबेडकर जी जो है he always had a strong opposition against गांधी जी. He never believed in Gandhian principles. उनका जो था, उनका मानना था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है they are deprived of their rights. And जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो the British was supporting Ambedkar and they were opposing गांधी जी. उनका था डिवाइड एंड रूल. अगर ये दोनों लड़ेंगे तो ये मतलब कि कुछ भी नहीं होगा. एंड गांधी जी का मानना था कि अभी हम लोग साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बाद में ब्रिटिश से हम लोग अपने आपस के झगड़े को हम बाद में निपटाएंगे. बट दिस, उन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, ड्यू टू दैट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा जो है दैट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल. वन सच ग्रुप वाज the nation's untouchable, who from around 30 had begun to call themselves Dalit or oppressed. For long time the Congress had ignored the Dalit for fear of offending the Sanatanis. Sanatanis होते हैं आपके सनातन धर्म, यानी कि the higher class, Brahmins. But Mahatma Gandhi declared Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. He called the untouchables Harijan. उन्होंने उनको एक नया नाम दिया, हरिजन. एंड दिस आई एम स्ट्रेसिंग बिकॉज दिस इज अ पेपर्स 1 मार्कर क्वेश्चन. ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है. दैट उन्होंने क्या दिया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड. उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया, एंटरिंग इनटू द टेम्पल, क्योंकि उनको ये सब चीजों का अलाउ नहीं था. गांव के अंदर वो लोग जो है, जो आपके चबूतरा होता है, मेन प्लेटफॉर्म, या वेल होता है, यानी कि आपका कुआं, वहां से वो पानी नहीं निकाल सकते थे. दे कुड नॉट गो टू द स्कूल्स, दे कुड नॉट गो, सो दे वांट, ही वांटेड, उनको वो इक्वालिटी मिली.
He himself cleaned toilets to dignify the work of the Bhangi and persuaded upper class to change their heart and give up the sin of untouchability. But many Dalit leaders were keen on a different political solutions. Even Dalits खुद इनके साथ नहीं आना चाहते थे. They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institutions, separate electorate that would choose Dalit member for legislature. यानी कि उनका जो एरिया है that should be ruled only by the Dalits. So ये उन्होंने किया था और यही रीजन है इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई हुआ था. Dalit participation was limited, particularly in Maharashtra and Nagpur region where the organization was quite strong. Dr. B.R. Ambedkar, who organized the DCA, Depressed Class Association, जिसका बाद में नाम पड़ गया था शेड्यूल कास्ट. ये आपके पेपर का 1 मार्कर है. When I will be sharing the MCQs, you will see these questions in that. He clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits. When British government conceded Ambedkar's demand, Gandhi began a fast unto death. मैंने बताया अभी आपको उन दोनों का आपस में था. एंड ब्रिटिश का हमेशा एक रहता है डिवाइड एंड रूल, दोनों की लड़ाई करवा दो. और महात्मा गांधी जब वहां से वापस आए ना तो ही वेंट ऑन फास्ट. अल्टीमेटली अंबेडकर जी को उनके सामने झुकना पड़ा. एंड पूना, उस वक्त में पुणे को पूना बोलते थे. द पूना पैक्ट वाज साइंड इन सितंबर 1932. He believed separate electorate for Dalits. उस वक्त में अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा तो हमारा जो इंटीग्रेशन वो नहीं होगा. पहले हमें मिलकर ब्रिटिश को यहाँ से भगाना चाहिए, फिर हम चाहे तो फिर बाद में जिसको जो चाहिए हम देना चाहते. एंड द रिजल्ट वाज Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Pact. It gave the depressed classes, that is scheduled class, reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted by general electorate. जो भी उस एरिया में रहेगा वही करेगा, लेकिन जो उसमें खड़ा होगा, आपको अगर याद हो, we had done this in 9th standard. Reserved आपका सीट का मतलब होता the person who is standing for the election will belong to the reserved category. लेकिन जो वोट देते हैं they can be anyone. The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of Congress-led nation movement. They were not that much. Then second is the Muslim. आपको याद होगा हमने start किया था with the non-cooperation खिलाफत movement, but that was not a success. Many of the Muslims felt alienated. उनको लगा कि the Congress is openly associated with the Hindu national group like Hindu Mahasabha, जिसका बाद में RSS नाम था. और आज भी RSS is one of the strongest Hindu party in our country. As relations between Hindus and Muslims worsened, हर जगह पे violence रहता था, हर जगह पे जो है religious procession, हर जगह पे communal clashes बहुत common थे. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate, and in 1927, such a unity could be forged. The important difference were over the question of representation in future assembly. That is, जब एक बार इंडिया आजाद हो जाएगा, उसके बाद मुस्लिम्स का क्या रोल रहेगा. This was their problem. This was their what you call as उनकी मतलब सबसे बड़ी. और इसी वजह से इंडिया जो है वो आपका पार्टीशन भी हुआ था. मोहम्मद अली जिन्ना, who was the first prime minister of Pakistan, he was willing to give up the demand if Muslims were assured reserved seats. जैसे दलित ने कहा था वो भी चाहते थे, जहां जहां आपके मुस्लिम डोमिनेटेड पीपल थे. जो आपका एक तो पंजाब है, मतलब ये वाला पंजाब नहीं, अब वो वाला पंजाब पाकिस्तान जा चुका है.
एंड बंगाल, अब उसको हम बांग्लादेश का नाम देते हैं। यहाँ मुस्लिम्स आपके ज्यादा रहते थे। तो स्टूडेंट्स हु विल बी स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस इन 12th स्टैंडर्ड, यू हैव दिस देयर। Negotiations over the question of representation continued, but all hopes of resolving at the all party disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. जब हिंदू महासभा के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया, तो हिंदू और मुस्लिम का जो पहले यूनिटी होने वाला था वो खत्म हो गया। इन 1930, ये पेपर में आया हुआ है, ये जो पहली लाइन है ऑफ सोर्स डी, मोहम्मद इकबाल, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, हु डिमांडेड अ सेपरेट पाकिस्तान इन 1930। मोहम्मद इकबाल ने, मुस्लिम लीग के जो उस वक्त में प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तभी पाकिस्तान का डिमांड किया था कि जब भी इंडिया आजाद होगा, द एरियाज वेयर द मुस्लिम्स आर डोमिनेटेड, दैट शुड बी गिवन टू द मुस्लिम्स एज पाकिस्तान। And that is why when 1945 में negotiation start हुआ था, तो India was partitioned into two nation theory. The areas of Muslim domination went to Pakistan, and the Hindu areas came to India. When the civil disobedience started, there was thus an atmosphere of suspicion, distrust. Alienated from Congress, last section of Muslims could not respond for a call of united. Many Muslims and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority in India, और that is why they were not. यानी कि दो सोशल ग्रुप्स आपके, एक आपका जो है मुस्लिम एंड दूसरा आपके जो आपके डिप्रेस्ड क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट जो थे, उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा। दैट वाज अ लिमिटेशन। बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट तो किया, बट ये लोग तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो हाउ डिड इट कम, व्हाट हैपेंड एट द एंड? एंड कुछ नहीं था बेटा, when people started looking into the matter as one. जब तक हम ये सोचेंगे ना, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, वी कैन नेवर डू एनीथिंग। बट जब हम सोचेंगे ये हमारी प्रॉब्लम है, अब क्लास के अंदर मान लो कि बॉयज को मैम ने डांट लगा दी, अब गर्ल्स कहते हैं हमारी प्रॉब्लम नहीं यार, ये बॉयज की प्रॉब्लम है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट वुड ओनली डिवाइड एंड रूल। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम बॉयज गर्ल्स बुद्धू इंटेलिजेंट ऐसा कोई भी ग्रुप ना करके अगर हम कलेक्टिवली करें ना, तो दैट वुड ऑलवेज हेल्प। I remember when I was in 9th and 10th standard, we had a very good collective this in our school. हमारे पूरे ग्रीन फील्ड्स में हमारी जो क्लास थी, that was very much praised even by the principal ma'am for unity. हमारे क्लास के बॉयज, हमारे क्लास की गर्ल्स, दोनों एकदम, ना बॉयज गर्ल्स को डांट पढ़ने देते थे, ना गर्ल्स बॉयज को डांट पढ़ने देती थी। मतलब सुबह 0 पीरियड में आते थे, किसी बॉय ने काम नहीं किया तो गर्ल्स उनका काम, हम लोग सब काम करके दे देते थे। एंड ऑन द इन द मतलब कि अदर वे, बॉयज बहनों आपको कुछ चाहिए, हमारे यहाँ हमारे ज़माने में वो बाबू सोना वाला हिसाब नहीं था, तो हमारा टाइम तो एक अच्छी बात थी, हम लोग राखी ना भी बांधते थे लेकिन भाई भाई मानते थे। तो भाई बहन तुमको कुछ लेकर आना, हमारे यहाँ पर कैंटीन में बहुत रश होता था, तो बॉयज पहले जाकर सब कुछ हमारे लिए ले आते थे। सो दिस वे वी ऑल्सो हैड, हमारे क्लास के बॉयज जो होते थे ना, दे वर सो स्ट्रॉन्ग, क्लास के अंदर किसी भी दूसरे सेक्शन के बॉयज को अंदर नहीं आने देते थे। They had this much. They would be standing on the door like the चौकीदार्स। एंड उसी तरीके से उनको कुछ काम होगा तो लाइक मेरे हमारे क्लास में मैं एक और मैम थी, एक और मतलब की थी मेरी फ्रेंड संगीता त्रेहान, शी स्टिल माय फ्रेंड। तो शी हैज इन फैक्ट शी हैज अ वॉइस लाइक नाइटिंगेल। तो हमारे यहाँ पर मैं और वो दोनों सिंगिंग उसमें थे, ट्रूप में थे। तो दे विल से, जब भी कोई टीचर नहीं आई होगी ना, तो गाना गाओ, आर रमा गाना गाओ। एंड देन हम लोग जो थे, वी वर ऑल यू नो, किसी ना किसी ग्रुप के इंचार्ज होते थे, हम आपका काम कर देंगे, हम जाकर ना स्टाफ रूम से लेकर आ जाएंगे, वी विल डू। हमारी इतनी सारी नोटबुक्स होती थी, सब उठा के लेकर जाएंगे। वी हैड अ कलेक्टिव यू नो। इवन व्हेन वी यूज्ड टू गो टू द पिकनिक्स ऑल्सो, तो हमारे जो टीचर्स होते थे ना, दे वुड मेक अस श्योर, गर्ल्स खाना ला रही हैं तो बॉयज विल बी ब्रिंगिंग ऑल द कटलरी, दे वुड बी ब्रिंगिंग ऑल द बेड शीट्स, जो भी नीचे बिछाना वो सब बॉयज लेकर आएंगे। एंड गर्ल्स का काम होता था खाना लेकर आना। सिमिलरली बॉयज अगर खाना खाने के लिए गर्ल्स उनको खिलाती है, तो गर्ल्स जब खिलाती है तो बॉयज खिलाती है। वी हैड वेरी गुड यू नो
हमारा बहुत अच्छा था. So unless and until we don't associate ourselves with हम, हमारी फैमिली, हमारा देश, हमारा घर, हमारा अपार्टमेंट, हमारी सोसाइटी, जब तक हम नहीं सोचते ना, इट्स नॉट पॉसिबल. हाउ इट दैट नेशनलिज्म स्प्रेड, ये पेपर में यही वाली लाइन आती है बेटा, बिल्कुल सेम आती है. Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of same nation. If you believe, डीएवी के पेपर में जो मैंने आपको बताया था, डेमोक्रेसी वाला, अकाउंटेबल वाला था, या कौन से वाला था, द फर्स्ट एवर मतलब कि बोला जो क्वेश्चन था, दैट केम इन डीएवी आल्सो. सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच कम्स, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. दिस क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी आल्सो, बट उसका चेंज है रूप. बट हाउ डिड द नेशन बिकेम रियलिटी? हर एक ने अपने तरीके से किया. लाइक मेनी हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर मतलब हमारा लोक संगीत, हमारे लोक कथाएं, जैसे महाभारत हो गया, पंचतंत्र हो गया, पॉपुलर प्रिंट सिंबल्स, जिनका बाद में पेपर में मेकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल आएगा, उसमें भी है ये वाला मतलब कि दिस इज देयर इन योर. सो मेनी पीपल स्टार्टेड, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता था, जितने भी कैलेंडर्स होते थे ना, उनमें भगवानों की फोटोज होती थी, उनमें हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं उनकी फोटोज होती थी. द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वॉज विद द एलिगोरी ऑफ द फिगर ऑफ इमेज. हम अभी भी क्या करेंगे, 15 अगस्त को यहाँ पे अपने चारों तरफ वो लगाएंगे, मतलब कि झंडा लहराएंगे. अभी आजकल एक नया वो चल रहा है कि हमारा 75th आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, आप लोगों को अपनी डीपीज को चेंज करना है. देर आर सो मेनी, दिस व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको जो है अपनी डीपी चेंज करनी है, डीपी में अपना वो झंडा लगाओ. आई सॉ मेनी ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड हैव ऑलरेडी यूज दैट. तो दैट इज एलिगोरी, दैट इज कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. So everyone started identifying भारत माता. ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको अगर आप 10 बार भी पढ़ोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय is a very famous writer also. He also wrote वंदे मातरम, जो कि बाद में आनंद मठ जो है एक बहुत ही फेमस नॉवल है. इट्स ऑल्सो मूवी, जो हम लोग वो गाते हैं ना, वंदे मातरम सुजलाम सुचलाम, दैट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. एंड दिस सॉन्ग वॉज सung ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट. अब याद रखना, ये स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है. लास्ट टाइम एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मामी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है. नो, Abanindranath Tagore was the cousin to Rabindranath Tagore. He painted his famous image of Bharat Mata. उसमें उन्होंने जो है ये वाली पिक्चर है, एंड दिस पिक्चर केम इन द बोर्ड कि ये क्या सिंबलाइज करता है. What does this picture symbolize? This ascetic मतलब सन्यासी, calm, composed, divine, spiritual. Then भारत माता के बाद में बड़े सारे आए थे, और आज भी आपको पता, भारत माता का मतलब होता है हम गर्ल्स को वो येलो ग्रीन एंड रेड कलर की ड्रेस पहना के ऊपर एक मुकुट बनाते. दैट इज एन एलिगोरी कि हम समझते हैं वी आर पेइंग आवर ग्रैटिट्यूड टू दिस मदर अर्थ. Ideas of nationalism also developed through Indian folklore, हमारी जो लोक कथाएं. Many people sung the, मतलब कि गाना गाते थे villages में. These tales they believe gave a true picture, हम लोग क्या थे, हमारा ट्रेडिशन क्या था, हमारी आइडेंटिटी क्या थी. जैसे इन बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ began collecting ballads. बैलेट्स होते हैं सिंगिंग म्यूजिकल डांस, नर्सरी राइम्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोकलोर. बंगाल में उन्होंने किया.
इन मेड्रास नटेश शास्त्री, ये पेपर में ना पता क्या आता है, नटेशन, नटेशा, नटेश, मतलब अलग अलग नेम सेम आते, स्पेलिंग्स अलग होते हैं। नटेश शास्त्री जो है उन्होंने लिखा था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उन्होंने लिटरेचर को एक हमारा जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया, लाइक you know that India is the one which had given zero. India is the one which has given the decimal system. हमारा जो एक हिस्ट्री है इन द लिटरेचर इज द ओल्डेस्ट वन। इनफैक्ट हम लोग सर्जरी सर्जरी बोलते हैं, इट वाज सुश्रुता। इंडिया में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जो कॉप्स होते थे, डेड बॉडी होती थी, उसके अंदर से बोन्स को निकालकर सिखाते थे। तो सर्जरी, जीरो, डेसिमल, ये सब इंडियन ओरिजिन है। As the national movement developed, nationalist leader became more aware about such icons, symbols, और उन्होंने इनको यूज किया। अब ये जो है फ्लैग वाला, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। This comes normally in the schools. During the स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, पहले हमारा जो फ्लैग था वो था रेड, ग्रीन एंड येलो, और उनमें होते थे 8 लोटस। ये 8 लोटस कौन से थे? जो उस वक्त हमारे 8 प्रोविंसेस थे। फिर एक मून होता था जो कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज को रिप्रेजेंट करता था, और इस फ्लैग को जो है चेंज किया था गांधी जी ने विथ रेड, ग्रीन एंड व्हाइट एंड स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। बट स्पिनिंग व्हील को बाद में इसीलिए चेंज किया गया था क्योंकि स्पिनिंग व्हील दोनों तरफ से सेम नहीं लगता था। और आई थिंक अभी कौन था, अभी मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग दिस, वेंगई ऐसे कुछ नाम था, ही वॉज द वन जिन्होंने अभी वाला जो हमारा फ्लैग था उसको डिजाइन किया था, जिसके अंदर बीच में द चक्र इज देयर विद द 24 लीफलेट्स। Another means of creating was through reinterpretation of our history. क्योंकि ब्रिटिश तो कहते थे हम primitives हैं, हम तो बेवकूफ हैं, हम पुराने हैं। The British saw Indians as a backward, primitive, incapable of governing themselves. अब हमने अपने पुराने ancient times, हमारा आर्ट, हमारा आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, क्राफ्ट, इनको हमने याद किया, जो मैंने अभी आपको बताया, द कलेक्शन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेसिमल सिस्टम, दैट इज द जीरो सिस्टम, द सुश्रुता, ये सब। दिस ग्लोरियस टाइम वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, क्योंकि ये सब कुछ अच्छा था, इंडिया को तो सोने की चिड़िया माना जाता था, बट व्हेन इट वॉज कॉलोनाइज्ड तो शायद द इंडियंस हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स and they had given the way to others. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievement in the past, और अब हमारे जो नए चीजें उनको चेंज कर। These efforts to unify people were not without problems. कई जगहों पे आइकन्स बनाए जाते थे, कई जगहों को लोगों को लगता था कि they have been left out, but yet अल्टीमेटली सबको समझ आने लगा दैट वी नीड टू वर्क कलेक्टिवली। तो नेशनल फ्लैग, एलिगोरी ऑफ भारत माता, फोकलोर्स एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, आपके पेपर में 5 मार्कर क्वेश्चन है दिस चैप्टर 1। एंड जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्लैग है वो अलग से 3 मार्क्स में आपके आता है। This is how people found themselves. अब देखिए, ultimately what happened, जब इतने movements हुए, when this much of movement took place, there was nationwide anger. Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried each person to, single person भी movements के साथ जुड़ जाए। he tried for a national unity. उनका माना था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शेड्यूल कास्ट की जगह पर अगर हम एक इंडियन होकर करें,
हालांकि सबके लिए इट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. The Congress continuously attempted to resolve the differences, that is, between the Hindu, Muslim, between the different social groups, and ultimately the unity, disunity था, internal conflicts थे, but then जब लोगों को समझ आया कि we should not fight for narrow things जो कि हमें बाद में डिसयूनाइट कर देगा, एंड दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, दे स्टार्टेड कोऑपरेटिंग, तो इंडिया को आज़ादी मिली. इफ यू हैव एन ओल्ड बुक, children, you will not be having this portion because this is an added one in the new books, that is पिछले साल और इस साल वाले बुक में होगा. So if you are having an old book, please get this photo stick. Quit India movement. The failure of the Cripps mission, that is those who came for the negotiation. Then again Second World War, फिर से इंडिया में प्रॉब्लम थी, और इस वक्त में गांधी जी ने एक कंप्लीट विड्रॉयल, दैट इज कंप्लीटली यू हैव टू क्विट इंडिया, ये उन्होंने जो है स्टार्ट किया. और ये जो मीटिंग हुई थी, दिस वाज इन वार्धा. वार्धा इज नियर नागपुर, आपका वार्धा नागपुर के पास है. वहां पर 8 August 1942 they endorsed, which is called as the Quit India movement. The call for Quit India almost brought the state machinery to a standstill because many of the people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. मतलब इस बार सब ने participate किया. They observed हड़ताल, demonstration, processions, national songs, slogans. It was a mass movement जिसमें students, worker, peasants, everyone, जैसे आज के डेट पर जयप्रकाश नारायण, he was a founder of the one of the key political, then Aruna Asaf Ali, Ram Manohar Lohia, Matangiri Hazara, there were, मतलब ये लोग वो जो है जो बाद में भी they were in the ministerial positions. And this, even though the British tried to respond with brutal force, but this could not stop the Indians from movement, and this was perhaps one of the successful movement जिसकी वजह से बाद में ब्रिटिश को इंडिया को छोड़ना पड़ा. It was around 1945 when they decided that they are quitting India. There were number of meetings. As I said, the two nation theory was proposed by the Muslim League. उन्होंने propose किया था, हमने नहीं किया था. That is the Muslim League. And then demarcation हुआ उन areas का जहां मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं. That is आपका अमृतसर वाला area, लाहौर वाला area, उसको पाकिस्तान का नाम दिया गया. यहाँ पर जो बांग्लादेश अभी है फिलहाल के लिए, उसको ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया. And then 46, it was, all things were finalized, and it was on 15th August 1947 that we got independence completely. पहले तो हमारा जो आज़ादी का मतलब था only in the rule, बट बाद में हमारा ये जो मतलब कि मीनिंग था, दैट चेंज्ड. कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो फॉरेनर्स, ओनली द इंडियंस विल बी रूलिंग, एंड इंडिया वुड बी टेकिंग डेमोक्रेसी एज इट्स गवर्नेंस, एंड देयर वुड बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन. देयर वाज अ इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट 47 से लेकर 49 तक. And in 1950 on 26 January we adopted our proper constitution. हमने उसको implement किया, मतलब adopt तो हमने नवंबर में कर लिया था, उसको implement किया हमने in January 1950. And then the elections were held and India attained the position what we see now.
And today, when we are completing this chapter, we all should be happy that we are completing 75 years of our independence. So this chapter really means a lot as per the boards also. So this was nationalism in India. एंड जो लास्ट के हमारे चैप्टर जो मैंने करवाया है उसमें यू ऑल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, participation of women and their limitations, then what is the sense of collective belongingness, and maybe you have a right short note on Quit India movement. That may be there. और जो फ्लैग वाला है दैट हैज कम इन वंस और ट्वाइस, बट नॉर्मली स्कूल्स वाले लेते हैं फ्लैग्स को कि पहले हमारा जो फ्लैग था वो कैसा था, रेड ग्रीन एंड येलो, फिर आपका क्या हुआ रेड वाइट एंड ग्रीन, उसके बाद जो अभी हमारा है सैफरन वाइट एंड ग्रीन विद द अशोका चक्र, ये लेटर आपके जो है दिस वाज डिजाइन लेटर ऑन, जो गांधी जी ने डिजाइन किया था दैट कंसिस्टेड ऑफ द चक्र। और बाद में हमारा जो है इट वॉज इन 1921 दैट पिंगली वेंकैया, ये पेपर में उसका नाम क्या, ये भी रिसेंटली देयर वाज अ क्विज, उसमें पूछा गया था, he had designed this one with the chakra. So this is all about nationalism in India.